Are we confident that we can do that? There shouldn't be any problem. Particularly with the Rubab and Sabah and others taking care of the whole thing and managing it. So, what are we going to do, Rubab, now? So they will present the case Okay. and gestation diabetes. Mm. And this Dr. Dishant, he is from Rawalpindi, he is presenting the chronic diabetes case. Is it possible to do it here on the Zoom? Yes, of course. Because they will present their. उनको शामिल कर लिया ना? जी जी हाँ. So we will do this and आप रिकॉर्ड भी कर लेंगे इसको. रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड आप कहाँ बैठना चाहोगे? खड़े होकर करोगे बैठोगे? तो पावर पॉइंट पे बनी है। So पावर पॉइंट पे दे दिया आपने ना? जी सर, सर अभी बिल्कुल मतलब ड्राफ्ट है। ठीक है. What you can do is you can sit with Rubab over there and you can present from there. आज इधर से कर लो मैंने मेरे पास है लैपटॉप। इधर से कर लो इधर से है। इधर आना पड़ेगा आज फिर एक बंदा वहाँ चला जाओ वहाँ से बस स्लाइड आगे। हाँ चलो ये आपने फिर उधर देखना है स्लाइड एक तरफ से क्वेश्चन तो नाश्ता करोगे क्या हाँ? क्या कॉफी लेना चाहोगे? कॉफी सैंडविच कॉफी कॉफी लेकिन वो करना कोई 9:30 की please. My name is Dr. Ikram Makhloof. I am from Gynae Unit 1 Services Hospital and I am 4th year resident. And today the topic of my presentation is gestational diabetes mellitus. My patient, Mrs. Sana Parvez, 30 years of age, married for 6 years, bachelor's by education, resident of Shahbag, Lahore. एक मिनट पहले तो जरा थोड़ा सा आहिस्ता जाना जी ताकि हो जाए. दूसरा नाम नहीं लिखना. ठीक है. आप उसको करोगे मिसेस एसपी. ठीक है. मिसेस एसपी हो जाएगा नाम बिकॉज ऑफ वो आइडेंटिटी हम नहीं बताना चाहते. वो होगा और She's gravida 4, para 2, both alive issues and 1 abortion, previous to SVDs. Her last menstrual period was on 20th of May 2023. Her estimated date of delivery is 27th Feb 2023. February. Abbreviations बोलेंगे. February. ठीक है. Sir, although कि उनकी उस presentation में उन्होंने सारी बोली है abbreviations. That is not the right Abbreviations are thing. not incorrect. Abbreviation मैं तो वैसे ही इनको पता है मैं तो abbreviations नहीं समझ. ठीक है. Steth नहीं बोलता, artery नहीं बोलता, artery forceps. Stethoscope. Her duration of pregnancy is 30 weeks. She presented in the outpatient department for the routine antenatal visit with a deranged OGTT oral glucose tolerance test report showing fasting BSR of 95 milligrams per deciliter, 1 hour 193 milligrams per deciliter, and 2 hour with 172 milligrams per deciliter. इसमें ये करोगे कि ये तीनों values जो हैं इनको और थोड़ा सा shift कर दोगे because they are subheads of deranged OGTT. जी ठीक होगा. This was her planned pregnancy with spontaneous conception. Her urine for pregnancy test was positive 1 week after missing her periods, and a scan was done at that time at 8 weeks for the confirmation of intrauterine pregnancy. She took folic acid tablets. यहाँ पे now you see there are two things. One is gestational age as you have calculated by her LMP, and similarly you have calculated her expected date of delivery, which is 27th of February, and that is from 20th of May. Right now that is by dates. But these days what is more important is that you calculated by first trimester scan, which is the dating scan, and you go according to that because there can be a discrepancy of a week or so, or sometimes even more than that. And if it corresponds with that, the first trimester scan, then you emphasize that, you make that point
that she had a urine pregnancy test positive a week after missing her period, which were due on probably 20th of June, जी, right? So around that time, if possible, you can put in the date because you said that the patient is well educated. जी, Is she bachelor, masters, क्या bachelor, bachelor? तो वो आप बता सकते हो कि क्या उसका education था. And then उसको therefore you correlate that she would remember her dates. If she does, if she doesn't, that's okay. So when she missed her period, she had a urinary pregnancy test because she previously has had pregnancies, therefore she knows what it would be. And then also she had, it is important if you can find out the date of that scan. If the date of that scan is say 20th May से 8 हफ्ते जो बनेंगे वो कब बनेंगे 17th of June and 15th of July को पूरे 8 हफ्ते बनते हैं. So अगर 15th of July को उसने करवाया है या around that 16th 17th को करवाया है और 8 हफ्ते ही है उसका, then that means that it corresponds, the duration of gestation calculated on ultrasound is the same, it corresponds with period of amenorrhea, or there is discrepancy. If there is a discrepancy, then that would be noted here. So वो उसके हिसाब से 15th of July बनता है 8 weeks exactly from 20th of May. तो उसके हिसाब से यहाँ पे dates add अगर हो जाए तो वो हो. जी सर, हम dates add करें. She took folic acid tablets during her first trimester. When did she start that? uh, क्योंकि first trimester is of 13 weeks. जी, ये वैसे ये वाली सारी चीजें ये वही वाली चीजें हैं जो मैं हो सकता मैंने कंडक्ट करना है ये सेशन, तो मैं आपसे उस दौरान भी हो सकता पूछूंगा, जी, जी, राइट? जी, तो ये इसमें कुछ इंफॉर्मेशन जाहिर है आप इस तरह से बताओगे तो मैं कहूंगा कि when did she start folic acid? Now to emphasize the importance of folic acid, if she started it say in the 11th week, would that matter? No. That doesn't. As a matter, what does matter? Pre-pregnancy. So If she started folic acid actually should be before started in a planned pregnancy, 2 to 3 months before even Yes. you plan to have a pregnancy. Yes. So there should be adequate amount of folic acid in circulation already when conception Okay, takes place. yes. And therefore it is important कि आप folic acid, यहाँ पे हमने folic acid की importance भी साथ में बता दी. ठीक हो गया. Although this is a case of gestational diabetes, Mhm. लेकिन आप वो भी बता रहे हो. So there are two things which have come up to now. One is how are we going to manage the duration of pregnancy or calculate or have a record of duration of pregnancy, and secondly हमने अभी folic acid की बात की. ठीक हो गया. There was no significant history of excessive nausea, vomiting. in Why the do you first say trimester. excessive vomiting? Do you expect her to have excessive vomiting? Uh, She doesn't have twin pregnancy. She doesn't have molar pregnancy. She's not pregnant for the first time. And I'm sure that there wasn't history of excessive vomiting in the previous. आप vomiting क्या लो? ठीक. या कोई और symptoms कोई नहीं. There is no she did not have any significant symptoms associated with first trimester of pregnancy. You can just a blanket statement. You don't have to specify, because when you say there is no history of excessive vomiting, as if you expected her to have excessive vomiting. So implication ये है उसकी. So therefore वो नहीं होगा. ठीक हो गया. There is no significant history of nausea and vomiting in first No, trimester. there is no No history significant of history. symptoms usually associated with the first First trimester of trimester. pregnancy. अगर हैं तो बता दो. ठीक हो She गया. felt some nausea or she felt some fatigue or वो lassitude. Those are the things which are associated with that. वो अगर नहीं है तो she did not experience any. सर फिर हम ये दो लास्ट वाले पॉइंट्स जो है इनको मर्ज करके आपस में यही वाले नहीं अलग से कर दो. First trimester there is no history of fever with rash, bleeding, TB, drug intake, radiation exposure, etc. ये थोड़ा सा ज्यादा comprehensive है. Radiation exposure जो है radiation exposure is not something. Drug intake वो है, वो ठीक है. जी. और radiation निकाल दो. ठीक हो गया. ठीक है. At her 12 weeks of pregnancy, सर वैसे यहाँ पर भी डेट आनी चाहिए जहाँ पर उसका अल्ट्रासाउंड हुआ. हाँ, ये जब ये इस तरह से होता है तो वो है ऑन वो डेट और आगे ब्रैकेट में आप लिखोगे 12 वीक्स. 12 weeks. अब जिस तरह से हमने 8 हफ्ते किए वो था 15 जुलाई, तो 12 हफ्ते उसके बनेंगे उस हिसाब से 12th of August को. जी ठीक हो गया. ये मैं तुम्हें एग्जैक्ट कैलेंडर के मुताबिक बता दूं.
So 12th of August लिख दोगे या whatever. जी। अब ये देख लेंगे 12th of August को वहां पे नौर ना हो, नौर वाले दिन आपने करके किया है, राइट? जी। सो वो ईयर जो है उसमें अराउंड वो कर देना कि वो जो टाइम है उसको वो भी देख के कि वो उस तरीके से कि वो कि 12 वीक्स और 2 डेज और फलां भाई उसके मुताबिक आप करोगे। Saturday. Quickening felt at 20 weeks is absolutely wrong। मैं हर दफा हर किसी को कहता हूँ 18 to 20 weeks कर दें या ना 18 to 20 weeks नहीं है। Why do you want to mention quickening? आजकल क्विकनिंग का वैसे कोई नहीं है लेकिन है, क्विकनिंग क्यों मेंशन करना चाहते हो? क्या सिग्निफिकेंस है क्विकनिंग की? अभी हम जीडीएम पे नहीं पहुंचे। Sir, as such, when does she started feeling the movement ये of देखो, baby? मैं That's तुम्हें not बता that देता हूँ ना, significant. हम टाइम ज्यादा नहीं करेंगे ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्विकनिंग आप मेंशन करते हो टू कॉर्पोरेट द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। Hmm. A multip would feel fetal movements around 18 to 20 weeks, Yes. right? So if she starts feeling fetal movements of 20 weeks जो बनेंगे उसके उस हिसाब से 20th of February के हिसाब से अगर 12th बने थे 12th of August को तो 16 बनेंगे 9th of September को और 20 बनेंगे 7th of October को। 7th of October को उसके 20 weeks बनते हैं अगर वो डेट्स के हिसाब से जाओगे तो, राइट? तो 20 weeks पे अगर उस if you would say that she started feeling fetal movements in the first week of October, वो डेट दोगे ठीक है। which corresponds with 20 weeks। पहले ये करोगे कि कब on what specific time and date she started or around that she started feeling fetal movements। Now that corroborates further your assessment of her gestational age। If you say 20 weeks, it doesn't mean anything। ठीक है। What does it mean? मेरा पॉइंट समझ गए हो कि ये उसको वही वाली बात है जो फर्दर कॉर्पोरेट करने के लिए। So therefore you would say कि quickening she did feel quickening around the first week of October or in early October, first week ना कहो early October कहो या mid October कहो, mid October, which was approximately around the 20th week of, which comes to be around the 20th week of pregnancy। वो बाद में आएगा 20th week। Further saying that the progression of pregnancy or development of pregnancy proceeded according to normal parameters। Sir, now the second point is again, sir, इसको हम दोबारा से वही करेंगे कि anomaly scan was done at 20 weeks, date देंगे और उसके बाद उसको आगे करेंगे। क्योंकि वो स्कैन अगर आपके पास है तो आपके पास डेट होगी। So you will say कि वो क्या है। अब यहाँ पे मैं जब होगा केस तुम्हारा जीडीएम का, मैं तुमसे पूछूंगा कि उस वक्त क्या देखा जाता है। और did she have that first trimester dating scan तो हो गया इसका। Did she have that NT scan? Yes. 12 weeks पे and अगर वो मेंशन किया था। Yes, the last line. लास्ट लाइन के Yes, ये last में हाँ ये लास्ट में हाँ ये क्योंकि हम बात कर रहे थे तो वो आगे निकल गया। At 12th week, around 12th week कर दो। अल्ट्रासाउंड को फिर अगर वो ऐसे एब्रीविएशन लिखनी है तो कैपिटल्स में लिखो। अगर कोई इस तरह की चीज लिखनी है, UTI is a standard abbreviation which is understood everywhere, right? I am old fashioned, that's why I say I don't like abbreviations in conversation, but there are standard abbreviations। इंडियंस जो कर रहे हैं वो इसलिए कि 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, वो जो करेंगे वो ठीक बन जाएगी, राइट? वी आर नोवेयर। तो लेकिन आई वुड वांट यू पीपल टू स्टिक टू समथिंग, सम स्टैंडर्ड्स, ताकि वो उसके मुताबिक हो व्हिच इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। एंड देयरफॉर अगर यहाँ पे ये अल्ट्रासाउंड जो है और यूएस भी लिख दोगे तब भी वो चलेगा, यूएसजी भी लिख दोगे तो वो क्या है, दैट्स अंडरस्टैंडेबल, बट दैट शुड बी इन कैपिटल्स। इसमें से आपने एनटी लिखा हुआ। तो अब अगर है उसका हुआ था तो फिर आप एंटी मेंशन भी कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर है ये एट 12th week ultrasound or around that वो डेट है और एंटी वाज एस्टिमेटेड टू बी 1.2 और 1.35 जो भी उसकी एज के मुताबिक है उसका नॉर्मल वाला करके वो करोगे, राइट? क्योंकि अच्छा चलो अब आगे चलो। Then about anomaly scan. क्विकनिंग के बारे में आपने इसको चेंज करना। Anomaly scan. Anomaly scan was done। अब मैं आपसे पूछूंगा वहां के in that scan what do you observe? And what is the significance of that anomaly scan? Why do you do it at 20 weeks? Why not at 16 weeks? And why not at 28 weeks or 26 weeks?
लिखो सवाल, ये तुमने जवाब गिव करने हैं। लड़कियों तुम ये हिस्ट्री इस तरह से प्रेजेंट किया करो तो फिर बनने लगेगी, बनाया करो केस। ये एग्जाम की तैयारी वाली बात है। अभी हम 15 मिनट हो गए, 20 हफ्ते पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो ये आप ये सवाल ऐड करोगे, ये इसका आंसर ढूंढोगे, बनाओगे, बताओगे उसमें, राइट। 20 वीक्स पे ज्यादा क्या आपके जहन में क्या आता है? 20 वीक्स पे इसलिए कि उस वक्त तक मेजर स्ट्रक्चरल सिस्टम्स जो हैं वो सॉफ्ट टिश्यू मार्कर्स भी, सॉफ्ट टिश्यू मार्कर्स हम इसमें आइडेंटिफाई वो भी, और वो therefore then you can assess major Organic analysis. मेजर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज को हैं कि नहीं। जी. That's one. वो किसी हद तक। Number two, that if there is such an abnormality detected at that time which is incompatible with later life, then the termination of pregnancy is comparatively a minor procedure, number one. And also उससे वो भी साथ में that is emotionally less traumatic for the couple, for the woman and her family, right? अगर वैसे इंटरनेशनल होना चाहते हो तो फॉर पीपल कर दो, वो बंदी करो लेकिन अभी वो मैं इसको इधर, वैसे मुझे बहुत सख्त इख्तिलाफ है सबसे जो मतलब, खैर एनीवे दिस इज नॉट द डिस्कशन, बट ये है कि इट इज कंपैरेटिवली इट्स लेस ट्रॉमेटिक फिजिकली एंड इमोशनली। There was no history of raised blood pressure. हिस्ट्री ऑफ जो है ये स्मॉल में ठीक है या कैपिटल में करोगे? मैं जनरली इसको कैपिटल एच ऑब्लिक ओ कैपिटल ओ। There was no history of raised blood pressure, pedal edema, bleeding. अगर करोगे तो यहाँ बीपी के बाद कॉमा डालो जी, कॉमा, और pedal रिकॉर्डिंग pedal edema bleeding bleeding हाई बीपी रिकॉर्डिंग, रेज ब्लड प्रेशर, बीपी edema कर दो, बीपी रिकॉर्डिंग आप बात कर रहे हो जी. देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ Raised blood pressure, recording. raised blood pressure, Recording edema और bleeding PV। ठीक है, ठीक है, ठीक है. बल्कि bleeding PV को पहले ले आओ और raised blood pressure को। There was no history of bleeding per vaginal, pedal edema or raised blood pressure. bleeding PV again do you expect that? सर अगर मतलब वो ये raised अगर blood होगा, pressure अगर है, sir, अगर इसको दूसरा भी एक तरीका होता है, the pregnancy proceeded uneventfully, ठीक है, वो उसमें वो बता देते हो, which means that she did not come Seven. across any complication of pregnancy and it was proceeding uneventfully till that time, और फिर उस वक्त आप ठीक हो गया. She was regularly consuming iron and calcium tablets. अच्छा, ये जो है आयरन और कैल्शियम टैबलेट्स की तुमने बात की है, ये जहाँ पे वो अगर ये वो पेशेंट है जी जी, तो जिस वक्त फर्स्ट ट्राइमेस्टर था या अर्लियर ऑन, उस वक्त उनके टेस्ट करवाए गए थे, बेसलाइन टेस्ट कुछ, क्योंकि आप उस वक्त करवाते हो, जी, आप यूरिन भी करवाते हो, ब्लड शुगर भी करवाते हो, और CBC कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, ब्लड ग्रुप एंड और ब्लड ग्रुपिंग कराते हैं, RH और ब्लड ग्रुपिंग एंड RH फैक्टर, और साथ में हम करवाते हैं BSR करवाते हैं, और HBS एंटीजन और anti-HCV करवाते हैं, और यूरिन कंप्लीट ये एग्जामिनेशन ऐड करो वहां पे जी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ऐड करो ये सारी इन्वेस्टिगेशन, ठीक हो. और फिर इनको हाउ फ्रीक्वेंटली यू, तुम बैठ ही जाओ, अच्छा नहीं तुम मैं ये स्लाइड्स, करते हो? यस, अच्छा, तो दूसरी चीज उसमें ये करते हो, हाँ, अगर वो कोई ऐसी चीज हो तो उसको ऊपर नीचे करते हो, और ये कंज्यूम करने वाली बात से पहले आप उसको 12-14 हफ्ते के ऊपर अगर आपने मैनेज किया पेशेंट को, तो उस वक्त आपने उसको एडवाइस किया 14 हफ्ते पे, या कब क्या एडवाइस किया, क्या आयरन सप्लीमेंट आपने एडवाइस किया। वो आयरन सप्लीमेंट की बात करोगे तो मैं आयरन सप्लीमेंट के बारे में पूछूंगा कि व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन इज, आयरन फेरस सल्फेट है, फेरस ग्लूकोनेट है, फेरस फ्यूमरेट है, और उनके क्या क्या उनकी वो है, एंड हाउ मच एलिमेंटल आयरन इज देयर इन अ प्रिपरेशन, एंड व्हाट हाउ मच इज द रिक्वायरमेंट फॉर अ नॉर्मल प्रेगनेंसी फॉर अ वुमन हु हैज अ hemoglobin of 12.5 grams when she starts her pregnancy,
So over the course of pregnancy, how many milligrams would she require? And what iron absorption is like. So a question can be there about it. So और उसमें फिर मैं ये भी आजकल जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सीरम फेरेटिन आप सीरम फेरेटिन आप measure करो index of iron levels, Yes. because it also tells you about stores. She may have 12 gram hemoglobin, but her iron stores may be depleted. So therefore, that would be a better indication. तो वो आप देख लेना। Oh, I'm not doing it. I'm not doing it. नहीं वो क्या there are people who are Okay. हाँ नहीं don't worry कोई बात नहीं। Hope nobody is in distress really। हाँ चलो ठीक है। तो सीरम फेरेटिन भी ऐड करोगे और वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी एक उसमें ऐड करके तो वो बताओगे। और फिर what kind of iron do you अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर एक क्वेश्चन है। जी सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी क्वेश्चन हाँ जी। सर जो लफ्ज यहाँ पे लिखा हुआ है परविजाइनल, यहाँ से मुझे याद आया कभी कभार जो है ना हमें सीनियर्स इस बात पे टोकती हैं कि परविजाइनल नहीं बोलना, वेजाइनल ब्लीडिंग। वजाइनल ब्लीडिंग ये वैसे ये इसको बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं सिमेंटिक्स। आज जाके देखना कि सिमेंटिक्स का मतलब क्या है। ठीक है ठीक है सर। और सर उसके अलावा जो है लोकल एग्जामिनेशन पे भी मतलब वो करते हैं कि लोकल एग्जामिनेशन नहीं बोलना। लोकल क्या एग्जामिनेशन नहीं बोलना। लोकल सर आपकी आवाज कट रही है। अभी नालायक से एग्जामिनर हो सर लोकल एग्जामिनेशन हम कहते हैं ना कि we do the local examination. local per vaginum, per speculum, per abdomen, these are established terminologies. Per rectum, bleeding per rectum, है नहीं इस्तेमाल नहीं सर होता। आवाज आपकी कट रही थी, सॉरी। मैं शायद मेरे पास नेट का इशू है। अच्छा नहीं वो anyway ये it's a pity कि आप you come across that kind of examiner। ये जो प्रेजेंटर ने जो किया है प्रेजेंट किया है, I would not base the outcome of that result on whether she said these things or not। वो मैं जो इसमें जो बात बता रहा हूँ या इम्प्रूव कर रहा हूँ वो सिर्फ उसको बेहतर बनाने के लिए। जहां अब तक जितना कुछ हुआ है it would not have any bearing on the candidate's ultimate result so far। ये मैं बता दूं, अगर आपने पहले हमारी सारी चीज सुनी हुई है वो तो मैं उनको इसलिए कि हमने उसको प्रेजेंट करना है तब बता रहा हूँ। Otherwise if she has written it in small letters or she has mentioned that there was no history of excessive vomiting, I'll assimilate that, I'll accept that, I don't have any issue problem with that। But if you want to really make it a refined history, if you want to really do it in a nice manner and बिल्कुल flawless अगर करना है तो फिर आप उसको उस तरह से करोगे। ये सारी चीजें जो है मैंने इसलिए की। If I were your examiner and you were taking the examination, सर मैं so I will not fail you on, or I wouldn't deduct any marks on whatever you said or not said। सर मैं प्रेजेंटेशन के हिसाब से नहीं हम जी सर ये लोकल एग्जामिनेशन और परविजाइनल एग्जामिनेशन जी की जो बात है ना, ये एक्चुअली जब हम केस प्रेजेंट करते हैं ना तो कभी सीनियर जो है ना इस पे डांट देती हैं कि परविजाइनल नहीं बोलना। और आइंदा से अगर कोई डांटे ना तो कह देना कि डॉक्टर फरूख जमान से मैंने पूछा था, उसने कहा था कि कर दो। ठीक है, मेरा नाम ले लेना, क्योंकि इस वक्त जितने भी सीनियर्स हैं वो मेरे से सारे जूनियर होंगे। जी सर बिल्कुल। मेरे तो से सर ये वर्ड्स मतलब हम यूज कर सकते हैं परविजाइनल। और जनरली मैं ये भी बता दूं कि ज्यादा एग्जामिनर को मेरा नाम पता भी होगा। ठीक है जी जी सर बिल्कुल पता है। जी एक है वहाँ पे डॉक्टर फरूख जमान, उसने कहा सर मतलब ये दोनों वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के दौरान। बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मैंने कहा। ठीक है चलिए सर। अब अच्छा मैं इसमें आयन की बात हो रही थी कि आयन के बारे में जो आपने बात करनी है वो पकड़ी जा सकती है। इसी इन दी एग्जामिनेशन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर आपके पास जीडीएम का, वो तो आपने बाद में करना है ना, अभी तक तो हमें पता नहीं है जीडीएम का। तो जब तक जीडीएम आएगी तब तक तो टाइम मुक्त क्या होगा, वो टाइम खत्म हो जाता है।
तो वो आपका वाइवा हो सकता है कि और चीजों भी चला जाए। anemia पे चला तो जाए। ये मैं एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जी। एग्जामिनेशन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें मुझे, वुड यू फॉल्ट मी इफ आई आस्क दीस क्वेश्चंस एज एग्जामिनर? के लिए एग्जामिनर बड़ा अनफेयर था, मेरा केस तो जीडीएम का था और मेरे से आयरन मेटाबॉलिज्म पूछता था, राइट? जी तो ये वाली चीज है। और फिर आयरन का और उसकी आयरन, फ्यूमेरेट, ग्लूकोनेट एंड सल्फेट, इनकी जो है आपने डोजेज, इनकी साइड इफेक्ट्स, इनका जो स्टमक के ऊपर जिस तरह से उनकी इरिटेशन है या अदरवाइज है उसके बारे में, और 2-3 ब्रांड नेम्स की प्रेपरेशन भी, कि सेंगोबियन में क्या है, फीफॉल में क्या है और आइब्रेट में क्या है, उनमें कौन सा आयन है, सो दैट अगर आप एक प्रेपरेशन ब्रांड बंद करके दूसरा भी दे रहे हो और वो भी वही सॉल्ट है जो कि वो है, फिर इस तरह से नहीं होगा। अच्छा चलें, ये इसको भी आप जरा ठीक कर लो, जी ठीक है। समझ गए? जी सर। अब चलो, सर द लास्ट पॉइंट इज कि सर इसमें भी हमें कोई डेट मेंशन कर देनी चाहिए या मंथ का कोई बता देना चाहिए कि इनका पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, एंड कॉमा के बाद स्पेस देते हैं जैसे, एंड पॉलीफेजिया आर प्रेजेंट फॉर फास्टिंग। वैसे बात सुनो, मैंने तो आज तक नहीं देखा डायबिटीज वाले पेशेंट्स को ये करते हुए। तुम्हारी पेशेंट में था ये? आई एम श्योर नहीं था, तुमने वैसे ही दिखाया हुआ है। तो इससे पकड़ा जाता है, पता चलता है। मतलब अगर मेक इट अप, वो भी पता चलता है, ठीक है? तो सर ये लाइन में वैसे अंदर से निकाल कर नहीं, आप फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस आप रख सकते हो। ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ऑन स्पेसिफिक क्वेश्चनिंग, मतलब बी अ स्मार्ट कैंडिडेट, ठीक है। on specific questioning there was no history of, क्योंकि I so far जो मैंने अंदाजा लगाया है उसकी डायबिटीज या उसका ब्लड शुगर लेवल्स वेल कंट्रोल्ड है, वो आउट ऑफ नहीं, वो 240-50 वाले नहीं थे। अगर होंगे तो 185, 160, 170 तक होंगे जब तक डायग्नोज हुआ, राइट? तो उसमें ये सारा कुछ नहीं होता, ठीक है? लेकिन इफ यू वांट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, तो वो आप इस तरह से कर दो। ये जो है ये डिटेक्टिव वर्क होता है, एग्जामिनर ने ढूंढना होता, पता करना होता है। सो ये वाली चीज है। सो आप गो ऑन स्पेसिफिक इंक्वायरी, देयर वाज नो हिस्ट्री सजेस्टिव, नो हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव थर्स्ट, और वो पॉलीडिप्सिया अगर आप अवॉइड करना चाहते हो बिकॉज वो क्लीशे बन गया ना जी, और वो क्या क्या था, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, देयर वाज नो हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव यूरिनेशन और थर्स्ट एक्सेट्रा। वो आप उसको उस तरीके से भी कह सकते हो, that will be a little different। ठीक है, ठीक है। growth scan was done, इधर भी डेट आनी चाहिए showing normal fetal biometry and like it। ये कब कराते हैं? सर 28 weeks onwards। अच्छा चलो, हाँ नॉर्मली, अच्छा ग्रोथ स्कैन शोइंग नॉर्मल फीटल बायोमेट्री, अच्छा। Her oral glucose tolerance test was done at 28 weeks of gestation। ये भी कैपिटल में लिखोगे, लेकिन 28 weeks लिटिल सर थोड़ा सा लेट हो गया असल में। सर एक पेशेंट ऐसे थी कि पेशेंट को एडवाइस किया गया था 24 वीक्स। एब्सोल्युटली, अगर इवन 32 वीक्स पे हुआ होता तो मुझे एक्सेप्ट सर लेके 28 वीक्स पे आई। लेकिन हाँ, हुआ कब था? डेट और वो गेस्टेशन उसका फिर वो रीइंफोर्स करने हो गए। हाँ जी, तुमने ये बताना है कि हुआ कब था, नंबर 1 जी। नंबर 2, अगर 28 वीक्स में तो उसको डिफेंड करो कि ओवर डिफेंस क्या होगा इससे तुम्हारे पास। सर के पेशेंट हमारे पास आई लेट थी, उसने अपना विजिट में नहीं, आई लेट नहीं, वो रेगुलर है, वेल एजुकेटेड है, रेगुलर है, सारा तो ऐसे टक 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 तुम टाइम पे करते आए हो, तो यहाँ पे लेट कैसे आ गई? क्योंकि ये यू वुड हैव टोल्ड, जब एनोमली स्कैन लेके आई वो 20 हफ्ते का स्कैन 21-22 हफ्ते पे, तो उन्होंने कहा होगा कि 24 वीक्स पे करा लो या 20 करवाना। नंबर 1, यू कैन हैव इट डन ऑन 28 वीक्स, नॉट नेसेसरी 24 वीक्स। ठीक है। दूसरी चीज जो है इम्पोर्टेंट है वो ये है कि क्या उसमें ऐसी हिस्ट्री, प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में सजेशन थी कि आप पहले कराओ उसका? थी जी। तो अगर थी तो फिर आप क्यों कराया, फिर पहले क्यों नहीं कराया? पेशेंट पहले से डायग्नोज केस नहीं थी जीडीएम का, लेकिन देयर वाज अ रिस्क फैक्टर। सर उसमें ये था कि उसको लास्ट प्रेगनेंसी में उसका जो एक इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई थी जिसमें उसको 3rd डिग्री पेरिनियल टीयर आया था और बेबी का जो वेट था वो भी मोर देन 4.5 केजी, more than 4 kg था, like 4 to 4.5 kg, तो like बड़ा बेबी था। अगर ये था और वो तो ये तो पहले एंटीनेटल पे ही उसकी हिस्ट्री होगी होगी,
जी सर। तो फिर तुमने उसका पहले हीमोग्लोबिन A1C पहले क्यों नहीं करवाया, पहले ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? उसमें तो GT और OGTT की बात ही नहीं बनती। Someone who has given history, उसमें अगर OGTT करवाना था तो उसमें nausea vomiting तुमने कह दिया कि उसको नहीं था excessive. She was a candidate for OGTT in the first trimester. करवाते हो कि नहीं करवाते? जी सर करवाते। If there is history suggestive of this, then and if the patient is not suffering from excessive vomiting, जी so then you will have it done at that time, or as soon as her excessive vomiting stops and she can tolerate oral glucose test. ठीक है। But during the meantime, आप first trimester में अगर hemoglobin A1C करवा लेते हो, तो that is the time when it is not very much disturbed by hemodynamic changes in the pregnant woman, जी right? So therefore, there are those two things जो आप इसको इसमें add करो या इसको modify करो, या तो उस बच्चे का साइज कम कर दो। सर साइड कम कर भी देंगे तो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी है हमारे पास, रिस्क फैक्टर तो फिर भी एक बार इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी क्या, मैं नहीं, हार्ट डिलीवरी इंस्ट्रूमेंटल करता हूँ। वो रिस्क फैक्टर नहीं, वेट है लेकिन इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी नहीं। अगर वेट है तो फिर अब इसको बच्चा इसको कुछ करना पड़ेगा। प्रभाव जरा वो करवाओ। ठीक है। वो तुम एग्री करती हो मेरे से? जी सर मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। चलो ठीक है। सो आप इसको इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे। जी सर। चलो मेरा तो ख्याल था मैं आउट ऑफ टच हो गया हूँ कंप्लीटली। जी सर। सर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराने के कुछ मतलब वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं सर, उसमें तो वो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी नहीं आता लेकिन 4.5 kg से अबव वेट आता है, मैक्रोसोमिक बेबी आता है। क्योंकि पहले जमाने में वो 2-3 चीजें हुआ करती थी, अनएक्सपेक्टेड स्टिल बर्थ, लार्ज वेट, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज और प्रीवियस हिस्ट्री, तो वो होते थे। अब तो वो नहीं है। जी अब तो आप एक प्राइमरी ग्रेविड है उसका आप 24-28 वीक्स पे करवाते हो। जी वो बल्कि मैंने एक पेशेंट को अभी करवाया, वो उसकी पहले प्रेगनेंसी को 10 साल पहले थी, तो कहने लगी थी क्या बात है इस वक्त इस दफा को प्रॉब्लम हो गई है, अब करवा रहे हैं। मैंने कहा नहीं अब हम सब में करवाते हैं। सो ये इसका आप देखोगे, ठीक है। एंड शी टुक इट अलोंग एट दी ओके। इसको आप मॉडिफाई करो लैंग्वेज भी इसकी, कि आपको आप समझ गए हो ना कि क्या करना है। There was no bleeding, there was no vaginal bleeding, leaking, raised blood pressure, fever, flu, बीपी का वो कैपिटल करोगे। जी सर। अच्छा अगर आपने 3 लाइनें ही लिखनी है ना, तो थोड़ा सा हर लाइन के ये 3 बुलेटेड जो है इनके दरमियान भी थोड़ा थोड़ा स्पेस दे दो ताकि वो अलग अलग हो जाए। अगर इकट्ठी है तो ठीक है, बट दिस इज अ नाइस स्लाइड, इतना ठीक है। नो ब्लीडिंग लीकिंग, ये कब की बात है? ये किस वक्त? थर्ड ट्राइमेस्टर जब हमारे पास ओजीटी रिपोर्ट लेके आई। ट्राइमेस्टर की 3 स्लाइड्स बनाएंगे। अच्छा नहीं, एक मिनट, थर्ड ट्राइमेस्टर तो वो उसमें फाइंडिंग्स भी साथ साथ बताते जा रहे हो कि नहीं बताते जा रहे हो? सर जैसे पिछली दोनों स्लाइड्स थी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की और सेकंड ट्राइमेस्टर की, उसमें हमने हिस्ट्री बताई थी ना। और अब देखो नहीं, अब देखो जो आपने उस वक्त बताया 20 वीक्स का स्कैन बताया, जिस वक्त the normally scan was done at 20 weeks, which was normal, but at that time you would have some inkling about the placenta की लोकेशन के बारे में भी बताओ। क्योंकि 20 weeks का जो है उसमें आपने सिर्फ स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी नहीं देखनी, आपने उसमें ये भी देखना एमनियोटिक फ्लूइड को भी मेंशन करो और उसमें प्लेसेंटल साइट को भी मेंशन करो कि क्या है, राइट। एंड इफ द प्लेसेंटल साइट जो है वो नॉर्मल है, अपर सेगमेंट में है, in which case you would normally not expect bleeding to be there, तो उसमें आप थर्ड ट्राइमेस्टर पे चले जाओ। तो उसमें आप ये why no bleeding leaking अगर हो तो ये इस absence of leaking bleeding मेंशन करना जरूरी है। I don't really think so। वो अनइवेंटफुली जा रही है, रेज ब्लड और रेगुलर उसका एंटीनेटल हो रहा है, उसमें अगर ब्लड प्रेशर होगा तो वो हो जाएगा। फीवर, फ्लू, रैश, डू यू एक्सपेक्ट दैट टू बी देयर? मेरा ख्याल है कि ये ऐसे काम में आप यार मुझे मार वाली बात, मैं व्हाई डू यू एक्सपेक्ट ब्लीडिंग, यू राइट समथिंग व्हिच इज होने वाला है। यहाँ पे आप ये बताओ थ्रू ये अब थर्ड ट्राइमेस्टर इज फ्रॉम 28 completed weeks to
40 weeks. हम्म, So ये कब हुआ? जी इसकी डेट और ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और उसमें सिर्फ थर्ड ट्रिमेस्टर को एक स्लाइड पे आप फारिग नहीं कर सकते, सेकंड ट्रिमेस्टर को भी नहीं कर सकते। उसको बेशक अगर करना है तो आप समरी कर लोगे, अगर एक स्लाइड भी है तो देयर शुड बी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, कि आपने देखा तो उसका ब्लड प्रेशर कितना था, वेट गेन कैसे चल रहा था, और एडिमा वगैरह को डेवलप हुआ कि सर नहीं। वो एग्जामिनेशन पे हमने आगे बताया है। वेट ये क्या है, ये सर, हिस्ट्री चल रही है। ये हिस्ट्री चल रही है। बेसिकली हमने 30th वीक पे पेशेंट आई है, उससे हमने पिछली सारी उसकी हिस्ट्री एक्सप्लोर की और 30th वीक पे उसका एग्जामिनेशन किया है हमने। अच्छा, जी सर, जो उसका ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, जिस टाइम पे हम उस पेशेंट से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं, सारी पीछे हिस्ट्री एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छा सॉरी, मैं मतलब वो अब ये वाली चीज जो है अगेन, नो दिस इज समथिंग व्हिच मैं प्रोबेबली मिस कर गया हूँ। सो आपने लिखा हुआ कि 30th वीक में पेशेंट जी आई, सर, जी सर, लिखा था शुरू में? डीपली करने को explain। ओके ऑलराइट, आई मिस्ड दैट। जी सर। अच्छा, अब अगर वो है कि वो ग्रोथ स्कैन, शी हैड अ ग्रोथ स्कैन और वो उसने कर दिया ओटीटी, वो प्रूव भी हो गया, आपने मेंशन वो कर दिया कि और इसमें के फिर ये भी आप चला सकते हो कि उसमें कोई ऐसी ब्लीडिंग, कोई देयर वाज नो एबनॉर्मल occurrence like bleeding or leaking etc suggestive of that, वो नहीं थी। जी लीकिंग के बजाय अगर एबनॉर्मल डिस्चार्ज कर दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक ठीक, ठीक है। चलो। सर एक क्वेश्चन है हाँ जी, जल्दी से पूछ रहे हैं। सर, वो सर अगर यहाँ पे जैसे डायबिटीज की पेशेंट है, इस पे हम इन्फेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम मेंशन कर दें कि कोई हिस्ट्री नहीं है, या अगर जैसे प्रीविया का पेशेंट है उसमें थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो वहां पे हम ब्लीडिंग का मेंशन कर दें। अदरवाइज ये चीजें मेंशन मतलब अलग से ना करें कि ये पेशेंट जो है हाँ ये उसको कोई ठीक ब्लीडिंग है, नहीं थी। ठीक कह रहे हैं, ठीक है, आई एग्री विद यू। अच्छा चलें जी, ग्रेविडा 4 पैरा 2 लाइव 2 अबॉर्शन 1। ओके, The first pregnancy was spontaneous conception 5.5 year ago. इसमें डेट डालो, ठीक है, डेट, ठीक है सर। That और was वो the next- डेट पहले होगी। ठीक है, डेट अगर 5 साल पहले है तो 2018, मई 2018। ठीक है। डेट बेशक ना हो लेकिन महीना Month क्लियर and हो, year. मई इतना। उसमें आती है कि शी हैड अ फुल टर्म डिलीवरी और फलाना फलाना या व्हाटएवर आफ्टर सो मेनी, वो या ऐसा स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन, डेट मिस्ड, Sir, मिसकैरेज, जी, अबॉर्शन the नहीं first- आजकल मिसकैरेज ज्यादा करते हैं। Yes, sir. जी, sir. Abortion. Termination of pregnancy को abortion कहते हैं, otherwise it is miscarriage. वैसे ये गड़बड़ी कर दी है, बिकॉज ये डिबेट अब से नहीं चल रहा, ये मैं तुम्हें 1974 का जेफकोट का एडिशन दिखाऊंगा ना, उसमें भी मिसकैरेज और अबॉर्शन के बारे में ये वाली बात की हुई है कि मिसकैरेज, चलो लेकिन अब चल रहा है। वो कहते हैं कि आप यूज करते हैं तो पेशेंट फील्स डिस्क्रिमिनेटेड, कि वो हाँ डिस्क्रिमिनेट, वो उस तरह से लगती है ना कि आप आपने willfully ये रिपब्लिकन्स ने अबॉर्शन को बड़ा फराहम कर दिया, हाँ। उसको डिसरिप्यूट में डाल दिया। हार्डली देयर इज अ डे जब अबॉर्शन के बारे में खबर नहीं अमेरिका के हवाले से आई होती। चलो जी, मिसकैरेज मेडिकली टर्मिनेटेड, मिसकैरेज के बाद कॉमा डालोगी। जी सर। Her second pregnancy was in 2000. ये ठीक है, इसी तरह से रहने दो, स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन ठीक है। Spontaneous conception 4 years ago. The whole pregnancy was uneventful during the antenatal period. There was spontaneous labor of 22 hours, about 22 hours. Baby girl was delivered via spontaneous vaginal delivery with episiotomy. अच्छा, इसमें तो थोड़ी सी चीजें मैं कहूंगा। अब जो 4 years ago है, is that the time she delivered or she conceived? सर उसकी जो ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री का जो चार्ट बना होता है उसमें जो डेट दी जाती है वो डिलीवरी की होती जी सर, है, ठीक है, जी सर। वो डिलीवरी की डेट होती है, और उसमें आप उस तरह से चलोगे, मैं उस तरह से कहूंगा कि दैट वाज अगस्त 2019 she delivered vaginally a baby girl, वो जो उस तरह से बता के अब आगे उसके चलोगे, it was spontaneous conception, the pregnancy proceeded uneventfully, there was no complication in pregnancy, labor was spontaneous, and it lasted 22 hours,
and she had normal vaginal delivery. A baby weighing जो उसका वेट है वो लिख दो। वो चार्ट जो है उसको आपने वर्बलाइज कर, जी वो ऐसे ना लगे कि आप चार्ट ही पढ़ रहे हो, लेकिन उसको उस तरीके से करना कि हर second pregnancy culminated in delivery on such and such, on after a full-term pregnancy which was uncomplicated. Delivery labor was spontaneous, lasted for 22 hours, and she had spontaneous vaginal delivery or normal vaginal delivery with episiotomy and gave birth to an alive baby girl or maybe boy. जी An alive baby girl weighing 2.5 or 3 kilograms. जी ठीक है, her third pregnancy was 2 years back. That अब was, इसको मतलब मैं उस तरीके से इनको वो कर देता हूँ। जी sir. Her third pregnancy was 2 years back, spontaneous conception. The patient was not very much compliant with the visits in her third pregnancy. The pregnancy, there was spontaneous labor of about 18 hours. Instrumental delivery done, male baby, 4.5 kg, with third degree perineal tear. And the repair was done at the same time, and she stayed at hospital for 1 week. इसको भी उस तरीके से करो, जी ठीक है सर। ठीक है ना, जी तो सर। वो हो जाएगा कि Sir, fourth pregnancy is the index pregnancy, sir. ये फिर ठीक है। प्रेजेंट प्रेगनेंसी, प्रेजेंट प्रेगनेंसी कॉमर्स मतलब इसको जी सर। टेक्स्ट को थोड़ा सा रीफ्रेज करोगे जी आप। सर ठीक। हाँ, सर ये हम पहले भी बात कर चुके हैं सर। Growth scan was done 29 weeks. That was okay. It's all right if you were telling the summary, it is okay. But in history, you should say that say वो biometry छोटी सी चीज है, biometry Liker and corresponded with 29 weeks. There was adequate amount of liker और उसका fluid index बताना है वो बता दो, और प्लेसेंटा जो है वो तरह से 3 इंफॉर्मेशन आपने बतानी है, तो बस और कुछ नहीं। जी सर ठीक। Her menarche was at the age of 13 years. She was having regular cycle of 7/28 days with normal flow, no dysmenorrhea, dyspareunia और no other associated symptoms. जी सर। no other associated symptom. ये normal flow या average flow ज्यादा? Average flow जो है वो ज्यादा बेहतर है। As already mentioned, her last menstrual period was on 20th May 2020. जब repeat कर रहे हो लेकिन उसका component जरूरी बन जाता है menstrual history का, तो as already mentioned कह देना वो होता है, ठीक है। सर यहाँ पर हमें कोई कॉन्ट्रासेप्शन और पैप स्मेयर के बारे में ये एक्चुअली इसी का वो ये गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री बनती है। exactly. इसको गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री का कंपोनेंट एक है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री और दूसरा एनी अदर गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम और प्रोसीजर, Exactly. और वो कॉन्ट्रासेप्शन भी उसमें आ जाता है। लेकिन ये सो गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री में हर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री इज वो, और उसके साथ ही फिर एंड पे आप कॉन्ट्रासेप्शन के कह दोगे कि वी यूज दैट कॉन्ट्रासेप्शन और नॉट। ठीक है। सो गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री करके तो उसमें कर दो। सर हेडिंग दे सकते हैं। हाँ, गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री का हेडिंग दे के कॉन्ट्रासेप्शन को उस तरह से कर दो। जी सर। नॉन कंसेंगुइनस नो हिस्ट्री ऑफ, सर वो ये उसमें आ जाएगी, ठीक है। सर पास्ट हिस्ट्री में नो सिग्निफिकेंट हिस्ट्री ऑफ, सर इसमें हाइपरटेंशन और पास्ट मेडिकल पास्ट हिस्ट्री जो है ना यहाँ पे पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री वो आती है, जी सर। और उसमें आप वो लिखोगे कि वो उसमें Not कुछ है। significant. सर पर्सनल हिस्ट्री में फिर हमने उसकी स्लीप, बाउल, ब्लैडर हैबिट्स के बारे में कमेंट किया हुआ, मिक्स्ड डाइट, हैज गुड एपेटाइट एंड नो एडिक्शन, नो ड्रग इनटेक। Her family history, her father was diabetic. Otherwise, the family history was not significant. मतलब वो एक ही हेडिंग दे के ना कि सिर्फ फादर डायबिटिक, मदर नॉट सिग्निफिकेंट कहने की जरूरत नहीं है। जो पॉजिटिव है वो कह दें कि इन फैमिली हिस्ट्री देयर इज हिस्ट्री ऑफ फादर बीइंग डायबिटिक, वो उस तरह से कर। वैसे पैटर्नल डायबिटीज का कितना इंसिडेंस है आगे फैमिली हिस्ट्री में? पैटर्नल का तो है, पैटर्नल का है वैसे 5% ऐसा पैटर्नल ज्यादा है। अच्छा एज कंपेयर टू मदर। अच्छा, मैं भी साथ साथ सीखता जाऊँ। रुमाल तो बड़ी वो
पता है तुम? जी सर। चलो। General physical examination. The patient was well oriented in time, place, and person at the time of examination. Her pre-pregnancy weight was 70 kg. Her height is 152 प्री centimeters. प्रेगनेंसी वो पहले रिकॉर्ड में जी देखा। सर, जी सर. Her body mass index at that time was 30.2. इसको भी तुम ऐसा, तुम्हारा नाम क्या है? Ikra. इकरा। इसमें भी अगर उसको करो ना, इसको आगे सब हेडिंग कर दो, वेट, हाइट, जी, BMI, जी, इसका स्लाइड में है जी सर, जी सर. Her current weight is 82 kg. Her body mass index kilograms. kilograms. जी. Her body mass index is 34.7 kilograms per meter square. There is no pallor, jaundice. स्क्वायर मीटर, Square. स्क्वायर आता बाद में, लेकिन बोला पहले जाता है। जी सर. सर हाइट इसमें सेंटीमीटर में मेंशन की हुई है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फीट इन इंचेस में ज्यादा ठीक है सर? इसमें फीट इन इंचेस वो है, लेकिन BMI calculation के लिए। इंटरनेशनली वो आजकल वो सेंटीमीटर में जाती है, तो वो इस तरह से। There is no pallor, jaundice, clubbing, cyanosis, वैसे lymphadenopathy. ये बात सुनो, 152 थोड़ी सी कम है, ये बनती है 5 फुट 2 इंच के करीब बनती है, 5 फुट 1 इंच। 4.5 किलोग्राम का बच्चा जो है बड़ी मुश्किल से आएगा 5 फुट 2 इंच। Tier आप गया इसे tier है. सर tier है. टियर तो वो आ सकता है, Outlet. लेकिन ये तुम्हारा कादी जो है ना, ये इसमें ठीक नहीं है। नहीं, वेट को कम कर क्योंकि ये जो है ना 152 सेंटीमीटर इज 5 फीट समथिंग, 5 फीट 1 इंच, क्योंकि 10 सेंटीमीटर के वो कितने होते हैं, 4 इंच होते हैं ना, 4 इंच होते हैं, तो ये उनमें 60 इंचेस बनते हैं, जो कि 5 फुट बनता है, 5 फुट है इतना, 5 फुट एक इंच है कद उसका, तो 5 फुट 1 इंच इवन विद इंस्ट्रूमेंट्स 4.5 मुश्किल है। सर वो करना पड़ेगा टाइम, इसको कम करो 3.8 पे ले उसको 3.8 पे ले आओ. बेबी बेबी वेट। के वेट को। नहीं, बेबी के वेट को जितना है रहने दो, Height बढ़ा नहीं नहीं, हाइट को अगर इतना था, अगर है तो रहने दो, लेकिन नहीं, मैं अब अगर देखो, बात सुनो, मैं तुम्हें बात, अगर तुमने ये किया हुआ है और तुमने उसकी वाकई हाइट मैयर की हुई है, अगर नहीं की हुई फिर जरा फर्क है, अगर तुमने किया हुआ तो है, इसका ये मतलब नहीं है कि छोटे कद में वो नहीं हो सकता, दैट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द पेल्विस, और वो कैसी है, किस तरह से है, उसके मुताबिक। जी ठीक. चलो, Sir, there is no history of नहीं, examination का है. No pallor, jaundice, clubbing, cyanosis, lymphadenopathy, bilateral pitting, अब इसमें ये अब इसमें 2-3 चीजें करोगे तुम, इसमें जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, जी. और ये जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ही जा रहा है, लेकिन उसके चलो Bilateral pitting edema absent, abdominal wall edema absent, skin, hair and nail were looking absolutely normal, and breast. हेयर की क्या इसमें? सर ये ना बेसिकली थायराइड एग्जामिनेशन में मोस्टली वो कहते हैं कि आप हेयर के ऊपर कमेंट कर दें कि वो सर थिनिंग हो जाती है हेयर्स की, और वो कोर्सनिंग हो जाती है हेयर्स की, तो सर उस लिहाज से सर जीपी में वो कहते हैं कि आप मेंशन कर दिया गया. सर द ब्रेस्ट एंड थायराइड एग्जामिनेशन वर क्या इसकी वर्ड बोलो, ब्रेस्ट वाज नॉर्मल। नो एब्नॉर्मलिटी, नो एब्नॉर्मलिटी, लेकिन ब्रेस्ट को अलग करो, थायराइड को अलग। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है उसको जी। ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी में अहमियत इतनी देते नहीं नहीं है जितनी देनी चाहिए. As gynecologists, like in states, gynecologists they deal with the basic breast problems. They may not be doing radical mastectomy, but they deal with that. और यहाँ पे भी बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो they consider that gynecologist के पास ही वो ब्रेस्ट इश्यूज के साथ आते हैं. लेकिन इसलिए नंबर 1 कि आपको जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनका पता होना चाहिए. नंबर 2, अर्ली और दोस वार्निंग्स जो हैं ब्रेस्ट के इश्यूज के, वो पता होने चाहिए. और तीसरी वो जो कि नंबर 1 पे सबसे इम्पोर्टेंट आनी चाहिए, वो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन प्रॉपर आना चाहिए. वो खड़े बैठे लिटा के किस तरह से करना है, कैसे पल्पेट करना है, उसकी इंस्पेक्शन क्या है, उसकी पल्पेशन क्या है, और उसको किस तरीके से करना है. सो वो वाली चीजें जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए. सर मैं एक पॉइंट पिछली स्लाइड पे चलो.
सर इसमें लिखा हुआ है करंट वेट 82 kilograms and BMI 34.7. सर करंट BMI को रिपोर्ट करने की अब जरूरत नहीं वो भी वो करने की बुकिंग जरूरत कर दिया एक दफा, तो उसके बाद वेट गेन पर हमने सिर्फ हाँ ठीक है यू आर राइट starting weight gain 70 kgs and till now by 30 weeks she gained by 12 kgs. That is quite big. उसने 24 पाउंड्स उसने गेन कर लिया है तो वो थोड़ा सा ज्यादा बट है ठीक है मतलब ज्यादा हो गया सर वैसे तो जो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस है सर वो कहते हैं कि अगर आपका जो BMI है वो मोर देन 25 है तो जो पूरी प्रेगनेंसी का वेट गेन होना चाहिए वो 7 to 9 kgs तक होना चाहिए। वो कम हो जाता है ना सिटी के अंदर है देखो- सर BMI अगर 30 से एक्सीड कर जाए बुकिंग BMI तो उसमें रिकमेंडेड वेट गेन थ्रू आउट 9 months इज लाइक 7 to 9 वो अगर पाउंड्स में लिया जाए ना तो नॉर्मली है 25 to 30 एवरेज अगर वो BMI 25 से ज्यादा हो जाएगा तो वो 20 to 25 पाउंड्स तक चला जाता है और अगर वो 30 से ऊपर चला जाता है तो वो तकरीबन 15 पाउंड्स पे आ जाता है कि वो उतना नाउ दैट्स एक्चुअली डिफिकल्ट एंड वो आपको पता होना चाहिए वैसे वो इसका सवाल आ सकता है जी सर। तो यू कांट रियली आस्क द पेशेंट के पेशेंट माइंड कर जाती है वो रुबीना जरा सख्ती से मना करती है तो उससे भाग जाते हैं पेशेंट के तो डांटती है कि इस तरह से है ना सर एक पॉइंट मैं इसलिए मैंने उससे सबक हासिल कर लिया मैं बड़े आराम से करता हूँ अगर देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं होगा लेकिन अगर ऐसा हो तो तुम्हारे बेबी के लिए ये ठीक नहीं होगा तुम्हें थोड़ा मुश्किल पेश आ सकती है और तुम्हारे कपड़े अच्छे अच्छे जो हैं वो फिर नहीं सही रहेंगे हैं और इतनी तुम प्यारी हो इतनी तुम अच्छी हो ठीक है जो जब इस तरह से करो तो वो वही बात तो वही है लेकिन कहने का अंदाज थोड़ा सो मैंने वो सबक हासिल कर लिया चलो हैं डॉक्टर रशीद साहब है। अच्छा चलें बाकी इसको फिर देख लेंगे अस्सलाम वालेकुम सर Good morning, sir. How are you? अच्छा मैं what we are going through is an exercise because सैफोग श्याम देसाई ने शुरू करवाता था मुश्किल सी बात है उन्होंने शुरू किया है कि एक सैफोग एजुकेशनल एक्टिविटी शुरू की थी which I think is very good actually because I heard part of the first event which was on 6th of December वो इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ 2 ਕੇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਨ ਕੋਈ ਔਰਕੈਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕੋਈ ਕੁਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ this time on 3rd of January Pakistan is going to make present on gestational diabetes and chronic diabetes in pregnancy in pregnancy ਦੋ cases ne and there are doctors from here from Lahore and doctors from Rawalpindi Islamabad who will be participating in that रुबीना ऑर्गेनाइज कर रही थी रुबीना चली गई है मेरे जिम्मे लगा के ये वो तो डॉक्टर रुबाब डॉक्टर सबा I wouldn't say old residents our previous residents they are managing it so one of the fourth year residents from Services Hospital she is presenting a case on gestational diabetes so the trial run आज जरा सी वो ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ फर्क मैं तेरे को एक गल पूछना ये जो आप कि मैंने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पार्ट ऑफ गायनिकोलॉजिकल हिस्ट्री सुना तो ये आप ट्रेन कर रहे हैं अपने डॉक्टर्स को कि जब मरीज देखें लेबर रूम में अपने क्लिनिक में तो ये चीजें करें ये है ऑब्जेक्टिव हाँ जी बिल्कुल क्योंकि मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि अगर ये ऑब्जेक्टिव है दैट्स परफेक्ट अवर यंग डॉक्टर्स शुड नो कि ये बातें उन्होंने देखनी है करनी है लेकिन इम्तिहान के हिसाब से ये सारी बातें जो है जो वो कहाँ तक कहनी चाहिए जो पॉजिटिव फाइंडिंग है वो कह के बाकी आ जाए कि ताकि टाइम सेविंग हो वहां तो 7-8 मिनट होते हैं उनके पास बिल्कुल एग्जैक्टली सही है so that will be emphasized because I totally agree with you पहले भी हम थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर चुके हैं what we are going to finally modify this whole process is that it should be completed within 20 minutes or so
वो हो जाए, थोड़ा सा हमारे अपने FCPS के इम्तिहान से थोड़ा सा एलेबोरेट ज्यादा होगा, क्योंकि because in that session it's more of a teaching session in which the facilitator, it's not an examiner, rather examiner oblique facilitator, interjects while the candidate is narrating history or the examination findings, and starts asking question at that time to clarify it or to kind of this is an examination oblique teaching session. हाँ बिल्कुल Fine. But your point is well taken, and I'll emphasize it to the हाँ आप postgraduate जब students. क्लास हो तो ये emphasize करें कि this is हाँ what is expected of you when you see a patient जी in the clinic, in outpatient or in the ward or labor room. लेकिन ठीक है, इम्तिहान में ये सारी डिटेल इस तरह से कहने के लिए वो तो करते करते ही वो हिस्ट्री खत्म हो जाएगी. हाँ बिल्कुल ठीक है, ये आप पॉइंट क्लियर कर दें. थैंक यू सर. थैंक यू. चलो यहाँ पे